مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ایماندار کی زندگی میں سب سے ضروری چیز دعا ہے۔ دعا کی کمی کی وجہ سے ساری روحانی زندگی میں بگاڑ آتا ہے۔ یعنی اگر آپ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں، جب وہاں پر لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، توبہ کی اپنے گناہوں سے، تو پطرس رسول نے 4 روحانی زندگی کے ستون بتائے۔ یعنی ہماری یہ کرسی ہے، اس کے 4 پائے ہیں، اگر ایک نکال دیں تو یہ کرسی بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اور وہ یہ ہے: رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یعنی مشغول رہے، یہ لفظ مشغلے سے ہے، ہیبٹ، عادت، یعنی دعا ان کی عادت تھی۔ یعنی اگر آپ دعا نہیں کریں گے، آپ کا تعلیم پانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے، آپ کا رفاقت رکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے، آپ کا شاعر بانی میں شریک ہونے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ یعنی جتنی بھی روحانی زندگی ہے، اس کی بنیاد دعا ہے۔ کہ کتنی دیانتداری سے ہم دعا مانگتے ہیں، کتنی دعا سے ہم محبت کرتے ہیں، کتنی محبت ہمیں خدا کی رسولی سے ہے۔ کسی نے کہا دعا ایماندار کی روحانی زندگی کا سانس ہے۔ دعا رک جائے، روحانی زندگی کی موت واقع ہو جاتی ہے، روحانی زندگی موت کے اندر چلی جاتی ہے۔ آج ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں۔ ابلیس ہماری دعا کے خلاف پلان کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح سے دعا سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور کسی نے کہا دعا آسمان کی کنجی ہے، یعنی آسمان کو بھی ہم دعا کی چابی سے کھول سکتے ہیں۔ دعا ایماندار کی زندگی کی سب سے ضروری چیز۔ تو ہم اس کے پہلوؤں پر غور کریں گے، کیونکہ اس میں سوالات بھی کیے گئے کہ جو مسیحی ہیں ان کی دعا کے ٹائم کیا ہے، کیونکہ ہم اسلامی کلچر میں رہتے ہیں، تو مسیحیوں کی دعا کے کیا اوقات کار ہیں، وہ کس کس ٹائم میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے کیا انہیں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ وضو کر سکیں؟ کیا انہیں خدا کے کلام میں کہاں یہ بتایا گیا ہے؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب ان سیشنز کے اندر جو ہمارا دعا کا مضمون ہے دیں گے۔ تو آئے ہم پہلے خدا کے کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب، اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم 19ویں آیت سے خدا کا کلام تلاوت کریں گے۔ اور پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدینی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے، پار اتر کر مقدینیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اب پالوس رسول کو ایک رویا خداوند نے دکھائی، اور رویا میں ایک مقدینی آدمی اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ مقدینیہ میں آ۔ مقدینیہ جو ہے موجودہ یونان ہے، اور موجودہ یونان یورپ میں، یعنی اس کا مطلب ہے جب پہلی دفعہ یورپ میں انجیل گئی، جب یورپ میں پہلی دفعہ خدا کا کلام پہنچا، تو اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اب 19ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی، تو پالوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چونک میں کھینچ لے گئے، اور انہیں فوجداری کی حاکموں کے آگے لے جا کر کہا، یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا، اور داروغے کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ ٹھونک دیے۔ یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا جو فوری سیاق و سباق ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ یورپ میں خداوند انہیں لے کر گیا، پالوس کو رویا آئی۔ اور اگر آپ اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو ایک عورت جس میں بد روح تھی وہ ان کے پیچھے چلاتی تھی اور کہتی تھی، یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی سنو۔ اب رسول نے دیکھو تعریف پر غور نہیں کی، بلکہ اس نے سوچا کہ یہ تعریف کس کی طرف سے آ رہی ہے، اور خدا کے پاک نے اس کی مدد کی، کیونکہ یہ دعا کرنے والے لوگ تھے، یہ روزے رکھنے والے لوگ تھے، یہ خداوند کی حضوری میں رہنے والے لوگ تھے۔ تعریف ہو رہی ہے، اپریشیشن ہو رہی ہے، لیکن اس نے پسند نہیں کیا، لیکن وہ آبزرو کر رہا ہے، وہ دیکھتا رہا بہت دنوں تک کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے کیا یہ ابلیس کی طرف سے تو نہیں۔ اور پھر کلام کہتا ہے اس نے رنجیدہ ہو کر اس بدرو کو ڈانٹا تو وہ نکلا۔ اب کیونکہ وہ اس غیر دین کی روح سے پیسے کماتے تھے،
उनकी कमाई का जरिया था। जब उनकी कमाई की उम्मीद जाती रही तो उन्होंने पालूस और सलास को पकड़कर हाकिमों के पास ले गए और लिखा चौक में खींच ले गए। खींच ले गए का तर्जुमा घसीट ले गए भी हो सकता है। यानी हम नहीं जानते कि जहां से उन्हें पकड़ा गया है वहां से कितना फासला है उस अदालत का, उस मकाम का जहां पर उनको मुकदमा चलाना था। लेकिन वो घसीटते हुए, शायद बाजुओं से पकड़ा हो, शायद टांगों से पकड़ा हो, उनको बेइज्जत करते हुए, घसीटते हुए चौक में खींच ले गए, अदालत में। यानी आप गौर करें, अगर किसी को बाजुओं से पकड़ा हो या टांगों से घसीटते हुए रोड पर ले जाया जाए तो उनकी क्या हालत हुई। शायद उनके कपड़े फट गए, उनके बदन जख्मी हो गए। और वहां पर जाकर एक फौजदारी के हाकिमों के आगे में कहा कि ये हमें ऐसी रस्में बताती है जिनको कबूल करना हम और रोमियों को रवा है। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले, बैत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैत लगवा। अब देखें, इन्हें रोड पर घसीटा गया है और कलाम कहता है इनके कपड़े फाड़ दिए गए, बैत लगाए गए। और बैत लगाने के लिए तरीका ये होता था कि दरख्त से बांध दिए जाते हाथ और इस बदन पर कोई कपड़ा ना होता था और दो जुलाब इधर से उधर बैत मारते। और जब वो बैत मारते थे बदन में लाशें बढ़ जाती और बाज दफा इन लोग मर भी जाते, इतना खून बह जाता। अब उनके बैत लगाए गए, लेकिन यहाँ जुल्म ये है कि बैत लगाने की तादाद भी नहीं बताई कि कितने बैत मारे जाएंगे। लेकिन बहुत से बैत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला। और जब दरोगे को ताकीद की कि इनको बड़ी होशियारी से निगरानी करनी है तो उनके अंदर के कैद खाने का मतलब है काल कोठरी, जहां सजाए मौत के मुजरिम रखे जाते हैं। और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। मुख्तलिफ तरह की काठ होती थी। एक काठ होती थी जिसमें बैठकर वो उस बहुत बड़ा शतीर होता, उसके अंदर से पांव गुजार कर कील ठोंकते और बंदा फिक्स इस तरह बांधा बैठे रहते और ना सांस ले सकता। फिर एक काठ होती वो खड़े होकर, यानी एक काठ होती इसमें 5 सुराख होते बड़े बड़े शतीर के साथ, इस तरह बांधकर पहले सुराख पर कील रखकर वो लकड़ी का टुकड़ा रखकर कील ठोंक देते और फिर उसको फिक्स बांध देते। इस काठ में इंसान को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। यानी आप गौर करें, मसीह की अंजील के लिए, लेकिन दुआ के वो कितने दीवाने थे। अब इन्हें वहां पर चौक में घसीट कर ले गए, इनके कपड़े फाड़े गए, इनके बदनों से खून बह रहा है और फिर कलाम कहता है बहुत से बैत लगवाए गए, लाशें पड़ चुकी हैं, फिर इनके पांव काठ में ठोके गए, सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन 24वीं आयत तक ये बात है, यानी रोड पर घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए, बैत लगाए गए, अंदर के कैद खाने में पांव काठ में ठुके हुए हैं, सांस लेना भी मुश्किल है। यहां पर उन्हें गिले करने चाहिए, शिकवे करने चाहिए। हमारे जैसे होते तो सलास पर उसको कह सकता था भाई तेरे रोया ही गलत आई। अगर रोया खुदा की तरफ से आई होती तो हमारे आगे तो फूल बिछने चाहिए थे, क्योंकि अंजील सुनाने में हम फूल ही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कलाम कहता है उनकी ये हालत है कि उनके बदनों से खून बह रहा है, पांव काठ में ठोके हुए हैं। और ये 24वीं आयत तक है और लिखा कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। लेकिन 25वीं आयत पढ़े, 25वीं आयत पढ़कर इंसान परेशान हो जाता है, दंग हो जाता है, शशदर हो जाता है। ये ऐसे भी दुआ के दीवाने लोग थे। आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। आधी रात के करीब, यानी आप गौर करें, उन्हें रोड पर घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको बेइज्जत किया गया, उनको मारा गया, उनके बैत लगाए गए, उनको काठ में ठोक दिया। लेकिन आधी रात के करीब ये है दुआ के दीवाने। ऐसी हालत में भी दुआ हो रही है। और आज अफसोस, हम अपने कमरों में पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, बहुत दफा हमारे घरों में बहुत पुरसुकून माहौल है, लेकिन अफसोस आज दुआ के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, आज दुआ के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। आज हम दुआ से बहुत दूर हैं। कलाम कहता है आधी रात के करीब पलूस और सलास दोनों के नाम लिखे हुए हैं। ये नहीं कि पलूस दुआ कर रहा और सलास बेदिल हो चुका है, दोनों आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे और कैदी सुन रहे थे। ये देखें वर्शिप, ये है सिताइश, ये है परस्तिश। हमने समझा है कि सिताइश सिर्फ चर्चिस में होती है, हमने समझा है कि दुआ सिर्फ इबादत खानों में होती है, लेकिन दुआएं पत्थरों की बारिश में भी होती हैं, दुआएं सलीबों पर भी होती हैं। और कलाम में लिखा है सिफरस के बारे में, जब उसे वो संसार कर रहे थे,
और उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग उसको संसार कर रहे हैं। कोई पत्थर उसके बदन के किसी हिस्से पर लगता होगा, कोई उसके बदन के किसी हिस्से पर लगता होगा, लेकिन मेरे अजीजों, जब वो पत्थर मारते मारते उस मकाम तक पहुंचे, क्योंकि एक मकाम आता था जहां पर एक ऊंची जगह होती थी और वहां से वो एक भारी पत्थर, संसार करने का यह तरीका था, भारी पत्थर संसार करने वाले के सर में मारते, बड़ा पत्थर, और सर कुचल दिया जाता और इंसान मर जाता। जब यहां पे स्टीफनस पहुंचा तो स्टीफनस क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचते तो लोग, जब वहां पर आते तो लोग अपना सर घुटनों में देकर नीचे झुक जाते, क्या पत्थर आएगा और इंसान मर जाएगा। लेकिन वहां पर स्टीफनस ने अपना सर घुटनों में नहीं दिया, बल्कि घुटने टेक कर आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा, इनको माफ कर। वहां पे दुआ वाली, यानी अगर इस हालत में भी ईमानदारों ने दुआ की है तो फिर हमें कितनी दुआ करने की जरूरत है। जब मसीह के लोगों को शहीद किया जाता, बाद दफा आग में जलाया जाता, बाद दफा उनके सर पर पत्थर मारे जाते, बाद दफा भेड़ों और बकरियों की खानों में उन्हें सलाई करके बेअबानों में फेंक दिया जाता, और ऑप्शन सिर्फ एक था कि कह दो कैसर खुदा ने दिया। लेकिन वो इस हालत में भी यही कहते थे, कैसर नहीं यीशु खुदा ने, कैसर नहीं यीशु खुदा ने। मेरे अजीजों, आज यही आवाज हमारे दिलों से आनी चाहिए। क्या हम दुआ से इस तरह मोहब्बत करते हैं? देखा कैदी सुन रहे थे, कैद के अंदर, जेल के अंदर, मुसीबत के अंदर दुआ हो रही है। आज हम मायूस हो जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम मायूस हो जाते हैं। और जब बच्चा अगर 4-5 दिन बीमार रहे, हम बाज़ दफा उसे पीरों के पास ले, जादूगरों के पास ले जाते हैं। लेकिन काश हम अपनी जिंदगी में दुआ को मिलेंगे। और इस वीडियो के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह दुआ से वहां इंकलाब आया, किस तरह जब उन्होंने दुआ की, उन्होंने सिताइश की, खुदावंद की परस्तिश की, उस परस्तिश के वसीले से किस तरह एक अजीब तब्दीली हुई। हालात बदलने हैं तो दुआ में झुकिए। हालात हम बदलना चाहते हैं परेशान होकर, हालात हम बदलना चाहते हैं ऐसी चीजें काटकर जो खुदा के कलाम में नहीं है। तो अगर हालात बदलने हैं तो हमें दुआ में झुकने की जरूरत है। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अपने आप को दुआ में पेश करें। खुदा आप सब